गाँव मेरे पीछे। यततोऽपि कौन्तेय यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चिता यततो हि अपि कौन्तेय यततोऽपि कौन्तेय पुरुष पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभां मनः हरन्ति प्रसभं मनः यततो हि अपि कौन्तेय यततो हति कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। पुरुषस्य विपश्चितः। क्या करेंगे हम, पहले 2 लाइन गाएंगे, ठीक है, इकट्ठे गाएंगे। गाओगे मेरे पीछे? यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततः यततः while endeavoring। while endeavoring endeavoring का मतलब क्या है? मेहनत करते वक्त endeavoring, ठीक है। यततः while endeavoring यततः while endeavoring he certainly he certainly अपि अपि in spite of in spite of कौन्तेय कौन्तेय O son of Kunti O son of Kunti पुरुषस्य पुरुषस्य of a man of a man विपश्चितः 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 full of discriminating knowledge full of discriminating knowledge इंद्रियाणि इंद्रियाणि यानी the senses the senses प्रमाथीनि प्रमाथीनि agitating agitating हरन्ति हरन्ति throw throw प्रसभम प्रसभम by force by force मनः मनः the mind। the mind Translation by Srila Prabhupada। Srila Prabhupada Prabhupada Jai। Jai. The senses are so strong The senses are so strong and impetuous, and impatient, O Arjuna, O Arjuna, that they forcibly carry that they forcibly carry away the mind away the mind even of a man even of a man of discrimination of discrimination who is endeavoring to control them. who is endeavoring to control them.
control them. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय. Jai. कौन पढ़ेगा purport? Mataji में पढ़ो. Mataji, पढ़ो can I read? पढ़ो. जूही पढ़ रही है शायद. पढ़ो. There are many learned sages, philosophers, and transcendentalists who try to conquer the senses, but in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victim of material sense enjoyment due to agitated minds. Even Vishwamitra, a great sage and perfect yogi, was misled by Menga into sex enjoyment, although the yogi was endeavoring for sense control with severe type of penance and yoga practices. And of course, there are so many similar instances in the history of the world. Therefore, it is very difficult to control the mind and senses without being fully Krishna conscious. Without engaging the mind in Krishna, one cannot seize much material engagements. A practical example has been given by Sri Yamunachari, a great saint and devotee who says, since my mind has been engaged in service of the lotus feet of Lord Krishna, and I have been enjoying an ever new transcendental humor. Whenever I think of sex life with a woman, my face turns from it, and I fit at that thought. Krishna consciousness is such a transcendentally nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. It is as if hungry man has satisfied his hunger by a sufficient quantity of nutritious eaters. Maharaj Amrish also conquered a great yogi Durvasa Muni simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. जय. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. Let us go word by word. करें मेडिटेट. हर एक वर्ड पे कृष्णा ने गाए हुए हर एक वर्ड पे मेडिटेट करना है क्या? है? सबको इंटरेस्ट है कृष्णा ने गाए हुए वर्ड्स में? अच्छा लगता है कृष्णा ने गाए हुए वर्ड्स के बारे में पढ़ना? कृष्णा ने पहला वर्ड क्या गाया? यत तो ही अपि कौन्तेय. यत तो मतलब इस तरीके से. इस तरीके से मतलब किस तरीके की बात चल रही है? इंडिवरिंग की बात चल रही है. तो जो योगी होता है वो बड़ा मेहनत कर रहा होता है. योगी मेहनत करते या नहीं करते बताओ मुझे. योगी की मेहनत क्या Yes, होती है? क्या मेहनत करता है योगी? माताजी अष्टांग योग करना, अलग अलग में करना, अलग अलग योग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हजार हजार सालों तक तपस्या करना, अपने सेंसेस को कंट्रोल में. पहले तो मेडिटेशन करता है योगी, ये बोला आपने. और क्या करता है योगी? माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना. जैसे ऑन ग्राउंड क्या करता है? एग्जैक्टली क्या करता है योगी? इंडिवर करता है मतलब ऐसे क्या करता है? पत्थर उठाता है? सेंसेस को कंट्रोल करता है मतलब माताजी करता क्या है? फोर्सिबली हाँ. वो अपने सेंसेस को, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो कई बार वो फेल भी हो जाता है. नहीं, इंडिवरिंग का मतलब चल रहा है तो योगी की मेहनत तो देखते हैं. व्हाट एफर्ट्स इज योगी टेकिंग एग्जैक्टली? किस इंडिवर की बात चल रही है? कृष्णा किस इंडिवर को पॉइंट आउट कर रहे हैं योगी के? क्या बोलना चाहते हैं? कौन से योगी को रिफर कर रहे हैं कृष्णा? इसके पिछले श्लोक में किस योगी को बोला था? कृष्णा तो कंटिन्यू कर रहा है ना पिछले श्लोक के बाद ये वाला श्लोक. तो इसके पिछले श्लोक में 2.59 में कौन से योगी को रिफर किया था? कौन से योगी को रिफर किया था? याद है क्या? माताजी मैं इसके पहले क्लास में नहीं थी. पिछले श्लोक में नहीं थे? बाकी कोई भी नहीं था पिछले श्लोक के वक्त? 2 दिन क्लास हुई थी, संडे मंडे. पिछले श्लोक में कृष्णा इज रिफरिंग टू योगी
जो अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल करके ये कर रहा है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है सारी सेंस एंजॉयमेंट से, और भगवान को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा है। पिछले श्लोक में हमने ये देखा था। तो अभी कृष्णा कह रहे हैं ऐसा योगी जो बड़ा मेहनत कर रहा है। मेहनत कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? उसको एंजॉय करने का मन कर रहा है लेकिन वो एंजॉय नहीं कर रहा। उसको अच्छा अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है लेकिन वो खा नहीं रहा। उसको शादी करने का मन कर रहा है, वो शादी नहीं कर रहा है। फिर उसको घूमने का मन कर रहा है लेकिन एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा है। तो उसकी इंडिवर, उसकी मेहनत किस फील्ड में है? एक जगह बैठने में है या कहीं ना जाने में है? अपनी इच्छाओं को पूरी ना करने में मेहनत है उसकी। एग्जैक्टली मेहनत कहाँ पे लग रही है? इंडिवर कर रहा है ना, क्या मेहनत कर रहा है वो? ऑन ग्राउंड। माता जी बताओ। अष्टांग योग करके। अष्टांग योग करके मेहनत कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? अष्टांग योग में क्या कर रहा है वो? दिखता क्या है आपको अष्टांग योग बोलते हो तब? माता जी वो यम नियम आसन ये सारी चीजों का पालन करता है। हाँ, करता क्या है? बैठता है, खड़ा रहता है, रूम में बैठा रहता है, जंगल में बैठा रहता है, करता क्या है एग्जैक्टली? घूमता है इधर उधर, लोगों से बातें कर। अष्टांग योग में करता क्या है वो एग्जैक्टली? एनी आइडिया? योगी करता क्या है जिसको मेहनत समझी जाती है? ऐसी क्या मेहनत कर रहा है वो? भक्त की तो मेहनत दिखती है ना सामने। भक्त लिखता है, रीडिंग करता है, डीटी वर्शिप करता है, रथ यात्रा निकालता है, भूखा रहता है, एकादशी करता है, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। भक्त दिन भर मेहनत करता रहता है, सौ सौ लोगों को भगवत गीता भागवतम पढ़ाता रहता है, दिन भर अपनी वाणी सेवा देता रहता है। तो भक्त की मेहनत तो दिखती है। अष्टांग योगी की क्या इंडिवर है? अष्टांग योगी का क्या मेहनत है एग्जैक्टली? कम ऑन टेल मी। माता जी मेडिटेशन करना, अपने सेंसेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना और मतलब हाँ, सारी जो योगी के लिए डिजायर्स है उन्हें सही किल बात है। करना। योगी के लिए ना सबसे ज्यादा मुश्किल तो यही है कि वो एक जगह पे उसको बैठना पड़ता है, अपनी सारी इच्छाएं मार के। सारी इच्छाएं मार के एक जगह पे बैठ के मेडिटेट करो। एक जगह पे बैठ के आपने योगा करना है, मेडिटेशन करनी है। एक ही जगह पे बैठ के, अगर ज्ञान योगी है तो एक ही जगह पे बैठ के बुक पढ़ना है। सो वाइल इंडिवरिंग, जब ऐसा योगी मेहनत कर रहा होता है, सर्टनली इन स्पाइट ऑफ ओ सन ऑफ कुंती, तो कह रहे हैं कि ऐसा योगी, हे अर्जुन, यत तो ऐसा योगी जो इतना मेहनत कर रहा है, ऑफ अ मैन पुरुषस्य, ऑफ अ मैन विपश्चिता, फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज। तो ऐसे योगी के पास में पूरा नॉलेज होता है, ठीक है? वो उसके अंदर पौरुषय होता है, उसके अंदर पूरा नॉलेज है क्या सही है क्या गलत है। जो सेंस कंट्रोल करके एक जगह पे बैठा हुआ है उसके पास बुद्धि नहीं होगी क्या? क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? होगी या नहीं होगी? बुद्धि होगी क्या उसके पास? होगी माता। बुद्धि होगी ना? तो ऐसा योगी है जो मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। ही हैज द डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज। डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज का मतलब ही है टंग के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आंखों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ईयर्स के लिए व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, नोज के लिए व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, स्किन के लिए व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, हार्ट के लिए व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, माइंड के लिए गुड बैड का डिस्क्रिमिनेशन है, इंटेलिजेंस के लिए गुड बैड का डिस्क्रिमिनेशन है, ईगो के लिए गुड बैड का डिस्क्रिमिनेशन है। गॉट इट? तो उसके पास ज्ञान है या नहीं है, इतना बताओ। कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसा योगी जो होता है ना, उसके अंदर, हे अर्जुन, कौन्तेय कह रहे ऐसा योगी, हे अर्जुन, उसके अंदर पौरुषत्व होता है, उसके पास विपश्चिता होता है, वो डिवाइड कर पाता है गुड एंड बैड के बीच में। उसको सब समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन उसकी इंद्रिय जो है, इंद्रियानी प्रमाथीनी, प्रमाथिनी मतलब क्या? भूचाल आ जाता है। जैसे ओशन वेव्स का भूचाल देखा है क्या आपने? ओशन वेव्स बहुत ऊपर आती है नीचे गिरती है, ऊपर आती है नीचे गिरती है। प्रमाथिनी इंद्रियानी प्रमाथिनी,
मतलब कभी कभी इंद्रिय कंट्रोल में रहते हैं, कभी कभी इतना भूचाल आता है कि उसको लगता है मैं आइसक्रीम के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, मुझे अगर आइसक्रीम नहीं मिली तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर कभी कभी उसको लगता है कि अरे आइसक्रीम ना भी हो इस जगत में, इन्वेंट भी नहीं होती तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने आइसक्रीम का ट्रक रख दो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो समटाइम्स ही विल फील ही कैन लिव विदाउट आइसक्रीम, समटाइम्स ही विल फील ही विल डाई विदाउट आइसक्रीम। ऐसे करके प्रमाथीनी, उसके अंदर प्रमाथीनी चल रहा होता है। इंद्रिय जो होते हैं ना उसको कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब रखते हैं, इसे नाम क्या दिया है प्रभुपाद कहते हैं एजिटेटिंग। प्रमाथिनी को एजिटेटिंग, एजिटेटिंग का मतलब क्या है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। एजिटेटिंग का मतलब समझ में आया, एजिटेटिंग क्या होता है, व्हाट इज एजिटेटिंग? माता जी अनस्टेबिलिटी। है जी, माता जी इंस्टेबिलिटी। अनस्टेबल ना, कभी मन करता है कभी बिल्कुल भी वैराग्य फील होता है, कभी मन करता है कभी बिल्कुल ही वैराग्य फील होता है। सो कई सारे आपने कुछ लोग देखे हैं जो ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैं भक्ति में जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, फिर वापस उनका मन करता है अरे इससे अच्छा तो गृहस्थ आश्रम ही अच्छा है, शादी कर लेता हूँ, शादी कर लेते हैं। फिर शादी करते हुए परेशान हो जाते हैं, वापस पत्नी को छोड़ते हैं और ब्रह्मचारी आश्रम या कोई ऐसे ही आश्रम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही मंदिर में जाके रहना है विदाउट एनी फैमिली एंड ऑल दैट, व्हाइट वस्त्र पहन लेते हैं। तो ये होता है प्रमाथीनी, एजिटेटिंग, इंद्रियानी एजिटेटिंग। पहले तो लगा इंद्रिय कंट्रोल में, फिर लगा नहीं नहीं मेरे को मॉल में शॉपिंग करनी है, अच्छा अच्छा खाना खाना है, पैसे कमाने हैं, ये तो मैं ब्रह्मचारी आश्रम में कर ही नहीं सकता। तो इंद्रियानी प्रमाथानी प्रमाथीनी हो गया, नौकरी भी मिल गई, पैसे भी आ गए, शॉपिंग भी हो गई, पत्नी भी मिल गई, लेकिन अभी वापस लगता है अरे ये सब कुछ त्याग देना चाहिए, बड़ी मेहनत है ये सब मेंटेन करने में। शादी करना तो आसान है, मेंटेन करना पड़ता है, नौकरी मिलना आसान है, नौकरी में प्रमोशन लेना, सैलरी बढ़ाना मुश्किल लगता है। तो इंद्रियानी प्रमाथीनी, उसके अंदर का जो इंद्रिय है वो सलाब लाते हैं अंदर ही। कभी सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा त्यागी हूँ, कभी सोचता है मैं बहुत ज्यादा भोगी हूँ, मैं तो रह ही नहीं सकता बिना पैसे कमाए हुए, मैं तो रह ही नहीं सकता करियर के बिना, मैं तो रह ही नहीं सकता बिना पत्नी के, बिना बच्चों के। तो भरत महाराज का हुआ था क्या इंद्रियानी प्रमाथिनी? आपको कोई एग्जांपल्स पता है ऐसे इंद्रियानी प्रमाथिनी वाले? ये तीसरी लाइन जो कृष्णा पॉइंट आउट कर रहे हैं भागवतम में या पुराणों में, कोई एग्जांपल्स आपको पता है क्या? डू यू नो एनी एग्जांपल? भरत महाराज का एग्जाम्पल पता है क्या, इंद्रियानी प्रमाथिनी हुआ था भरत महाराज के साथ? यस माता जी। क्या हुआ था भरत महाराज के साथ? माता जी उन्होंने जब मतलब उन्होंने सारा अपना राज्य त्याग दिया और वो जब चले गए जंगल में, तो उस वक्त उन्हें एक छोटा सा जो डियर का बच्चा था वो उन्हें मिला एक डेंजर सिचुएशन में, और फिर उन्होंने उसे बचा लिया। फिर बाद में उनकी आसक्ति उसके प्रति इतनी बढ़ गई कि वो एंड में ये भूल ही गए कि उन्हें भगवान का स्मरण करना है। वो बस उस हिरण के बच्चे के बारे में सोचते कंट्रोल रहते नहीं कि हुआ अगर ना, मैं मर भरत जाऊंगा तो महाराज से क्या होगा। कंट्रोल नहीं हुआ ना हिरण के प्यार में पड़ना। ये भरत माता जी महाराज फेल इन कंट्रोल लव विद दैट डियर ना, जो प्राणी था उसके प्रेम में पड़ गए ना, बच्चा था भरत महाराज, वो हिरण के बच्चे के प्यार में पड़ गए थे ना, यस। बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी ना। लेकिन कुछ साल पहले तो अपनी फैमिली से भी डिटैचमेंट आ गई थी, आ गई थी या नहीं आ गई थी? घर छोड़ते वक्त ऐसे नहीं लगा था मैं तो रह सकता हूँ वाइफ और बच्चे के बिना, फिर हाँ वो मरते वक्त तो डियर के बिना भी नहीं रह पा रहे, है ना? हाँ। तो इंद्रियानी प्रमाथिनी, इसको कहते हैं वेव्स ऑफ डिजायर्स। क्या कहते हैं प्रमाथिनी को? वेव्स ऑफ डिजायर्स। बोलो, लिखो आप, वेव्स ऑफ डिजायर्स। waves of desires। वेव्स ऑफ डिजायर्स में कभी कभी डिजायर 0 होता है, कभी कभी डिजायर 100 होता है। 0 होता है तो लगेगा मैं तो बड़ा वैरागी हूँ, मेरे अंदर तो कोई भी भावनाएं नहीं है, और 100 पहुंच जाता है तो ऐसे लगता है मैं तो बड़ा भोगी हूँ, मैं तो
लायक ही नहीं हो कृष्णा के पास जाने के लिए। तो ये भक्त के जीवन में भी आता है, मायावादी के भी जीवन में आता है। तो नॉर्मली जो योग प्रैक्टिस करता है, नॉर्मल योग, जो भक्ति के अंदर भी ज्ञान योग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, जो भक्ति के अंदर मायावाद प्रैक्टिस करने की, मतलब बोलेगा कृष्णा कृष्णा, लेकिन प्रैक्टिकली कृष्णा को किसी इंसान के अंदर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। उसकी लाइफ में उसके अच्छे अच्छे जो चीजें हो रही है उसमें कृष्णा का हाथ नहीं देखेगा। उसके लाइफ में बुरा हो रहा है, उसको भी कृष्णा की मर्जी नहीं समझेगा। तो ये इंसान मायावादी भक्ति कर रहा होता है। मायावादी भक्ति मतलब वो सोचता है कि कृष्णा एक आकाश है, कृष्णा को कोई आकार नहीं है। तो वो लोगों के साथ भी झगड़ा कर लेता है। उसको समझ नहीं आता कि जिस लोग के साथ वो झगड़ा कर रहा है उनके अंदर भी कृष्ण ही बैठे हुए हैं, तो झगड़ा नहीं कर सकता, किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में भी कृष्णा है। तो इट इज लाइक फाइटिंग विद कृष्णा ओनली। इफ यू आर फाइटिंग विद सम पीपल देन यू आर फाइटिंग विद कृष्णा ओनली। उसके पास ये थिंकिंग पावर ही नहीं रहती। तो ये कहते हैं कि भक्ति में रहकर भी मायावाद योग फॉलो करना, अष्टांग योग फॉलो करना। ये लोग क्या करते हैं, एकादशी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कृष्णा को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, ना लोगों के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, ना आसपास की उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ये आते हैं, घटनाएं होती है जहाँ पे वो बच जाते हैं, बाल बाल बच जाते हैं प्रॉब्लम से। तो उसका क्रेडिट कृष्णा को देने की बजाय वो किसी और को दे देते हैं। उनकी लाइफ में ऐसी भी घटनाएं होती है जहाँ पे उनको बहुत सक्सेस आती है, आती रहती है। हर एक के लाइफ में कुछ कोटा सक्सेस का होता है, कुछ कोटा फेलियर का, कुछ कोटा इरिटेशन का, सैडनेस का, सब कुछ सारे कोटा डिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं। लेकिन वो फेल हो जाएगा तब भी वो कृष्णा को याद नहीं करेगा, तब भी वो लोगों को ही ब्लेम करेगा और सोचेगा कि लोगों की वजह से मैं जो है मैं वो फेल हुआ हूँ। सो उसकी लाइफ में कृष्णा का प्रेजेंस नहीं होता। वो बाकी सब कुछ करेगा लेकिन अपनी लाइफ को जोड़ना कैसे कृष्णा के साथ वो नहीं हो पाता। तो कृष्णा को वो एक निराकार शक्ति की तरह ट्रीट कर रहा होता है कि आप हो आसपास, मुझे दिख नहीं रहे हो, इसलिए मैं आपको कोई भी क्रेडिट देना नहीं चाहता। तो इसको इसके अंदर भी डिजायर्स के बड़े सैलाब आते हैं। कभी कभी उसको लगता है वो वैरागी है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कभी कभी तो ये बहुत ही अनासक्त दिखता है, कभी कभी तो ऐसे काम करता है आसक्ति वाले। आसपास के लोग भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये इंद्रियानी प्रमातिनी सारे जीवात्माओं के अंदर है। प्राउड नहीं फील करना चाहिए, कभी भी प्राउड नहीं फील करना। अगर किसी दिन आपको ऐसा लगा ना कि अरे मैं तो एक ही पेन पेन पे जी सकता हूँ, मुझे दो पेन की जरूरत ही नहीं है, मैं बड़ा वैरागी हूँ, डर के रहना, क्योंकि इंद्रियों के सैलाब आते हैं। किसी दिन ऐसा होगा लगेगा 20 पेन खरीद लेते हैं, मम्मा ने दिए 100 रुपीज तो उसमें ही मैं 5 पेन खरीद लेता हूँ, 20-20 रुपीज का एक एक पेन, ऐसे करके 5 पेन खरीद लेता हूँ। ऐसे करके सैलाब आएगा अंदर। कभी कभी लगेगा क्या जरूरत है 5 पेन खरीदने की, एक ही पेन पे काम चला लेते हैं। सो इस तरीके से इंद्रियानी प्रमाथिनी चलता रहेगा। छोटी छोटी चीजों में ऑब्जर्व करने लग जाओ। You observe a lot by watching. बोलो सब, you observe a lot by watching. बोलो सब, you observe a lot by You observe a lot by watching. watching. अप्रमाथिनी का मतलब है सैलाब, डिजायर्स का, वेव्स ऑफ डिजायर्स, समटाइम्स 0, समटाइम्स 100, समटाइम्स 0। और ये पूरी लाइफ चलता है, बाय द वे, स्टॉप नहीं होता ये। जो भी योग प्रैक्टिस करेगा, भक्ति योग छोड़ के कुछ और प्रैक्टिस करेगा, वो बड़ा स्ट्रगल करेगा इंद्रियानी प्रमाथिनी। तो कृष्णा कह रहे हैं, हे अर्जुन, एक जो ऐसा योगी है, यत तो ऐसा ऐसा मेहनत करने वाला जो योगी है, यत तो उसके अंदर पौरुष है, विपश्चिता भी है, मतलब उसके पास पूरा नॉलेज है, क्या सही है क्या गलत है, विपश्चिता है उसके पास। लेकिन फिर भी उसके इंद्रिय जो है वो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा बड़े प्रॉब्लम से जाते हैं। वो कभी कभी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है, कभी कभी नहीं कर पाता कंट्रोल। वो बहुत अपने आप की बुद्धि से लड़ रहा होता है, अंदर ही लड़ रहा होता है। विपश्चिता मतलब उसको पता है ये गलत है। अब जब वो करेगा तो आत्मग्लानि में जाएगा, नहीं करेगा तो उसको नींद नहीं आएगी कि अरे मेरे को आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है, नींद ही नहीं आ रही। 3 दिन हो गए आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, एक हफ्ता हो गया आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है,
1 साल से मैंने आइसक्रीम छोड़ी हुई है, मुझे आइसक्रीम खाना है। सो वो जब भी कोई चीज गिव अप करता है तो उसको पता होता है बुद्धि को कि ये गलत है, इसलिए मैंने गिव अप किया है। लेकिन उसके इंद्रिय शांत नहीं रहते, वो इंद्रिय अटैक करते हैं उस पे, बीच बीच में अटैक करते हैं। 1 हफ्ते बाद अटैक होगा, 1 महीने में अटैक होगा, 1 साल बाद अटैक होगा, लेकिन अटैक पक्का होगा। ये इंद्रिय पक्का अटैक करेंगे, क्योंकि इंद्रियों दिखते कैसे हैं, हमने राजा पुरंजन की कथा में देखा था। इंद्रियों का शेप क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या है इंद्रियों का? माता जी वो 5 वुड वाला स्नेक। स्नेक था ना 5 वुडेड। इंद्रियों का पर्सोनिफिकेशन ही ऐसा है। आप महाविष्णु के दर्शन करने जाओ, महाविष्णु जहाँ लेटते हैं ओशन में, कारण ओशन में महाविष्णु लेटते हैं, तो महाविष्णु के पास जो 5 वुडेड स्नेक होता है वो कौन होता है? वो 5 वुडेड, 5 सेंसेस को दर्शाने वाला पर्सोनिफिकेशन है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा मुझे आंखों से दिखता है, लेकिन आइडियल हमें आंखें दिख रही है, आंखों से आपको सब कुछ दिख रहा है, लेफ्ट राइट। ऑन ग्राउंड उसका जो पर्सोनिफिकेशन है, जो दृष्टि के रूप में आपके सामने आ रहा है, उसका ओरिजिनल रूप तो स्नेक का हुड है। इसलिए संकर्षण को बहुत वैल्यू किया जाता है। संकर्षण भगवान हर चीज के स्तोत्र है, ऐसे कहा जाता है मटेरियल वर्ल्ड में। वाई? बिकॉज स्नेक का एक हुड जो है वो हमारी दृष्टि है, स्नेक का दूसरा हुड है वो हमारी बात करने की ताकत है, खाने की ताकत है, तो वो हुड है। सो पर्सोनिफिकेशन तो है। ऐसी जिह्वा को डेंजरस नहीं कहा गया। आप टंग कैसे भी यूज करोगे आपकी टंग में पावर है या नहीं है दूसरों को तंग करने की? है क्या? टंग में पावर है तंग करने की? दूसरों को हर्ट करने की पावर है टंग में? हाँ माता जी। टंग यूज करके किसी का दिल तोड़ सकते हैं, छल्ली छल्ली कर सकते हैं उसका दिल, बहुत बुरा भला बोल के। किसी की नींद उड़ा सकते हैं रात भर बुरा भला बोल के किसी को। टंग टंग तलवार की तरह यूज हो सकती है 10 लोगों का रिश्ता तोड़ने में। तो अभी ये टंग का ओरिजिनल पर्सोनिफिकेशन क्या है? सांप का हुड। जैसे एक सांप होता है वैसे ही टंग है। वैसे ही कान आपको बर्बाद कर सकते हैं, फालतू चीजें सुनोगे तो कान बर्बाद करेंगे या नहीं करेंगे? सपोज आपकी कल एग्जाम है और आप कानों से 8 घंटे तक न्यूज ही सुन रहे हो, पेपर में फेलियर आएगा या नहीं आएगा? आप गाने सुन रहे हो फेवरेट 8-8 घंटे तक, कल एग्जाम है, पेपर में फेल होगे या नहीं होगे? आप 8-8 घंटे तक डांस करोगे और कल एग्जाम है, गाने सुन के डांस करोगे लेकिन एग्जाम की पढ़ाई नहीं करोगे तो फेलियर आएगा। इसका मतलब कान भी सांप की तरह है, कान भी आपकी दुनिया बर्बाद कर सकते हैं, आंखें भी तो बर्बाद कर सकते हैं। विष है ना, ओरिजिनल फॉर्म ही विषैला सांप का है, ओरिजिनल पर्सोनिफिकेशन। इसलिए इंद्रियानी प्रमाथिनी कहा है। ये सांप के मन में जब आ जाए, उसने अगर ठान ली डसना है तो सांप डसेगा ही डसेगा। ऐसा किसी सांप को देखा है डसने के लिए आ गया फिर यू टर्न करके चला गया, सोच रहा है रहने दो, मूड नहीं कर रहा? नहीं ना। इसलिए आप लोगों को जब मैगी खाने का मन करता है तो आप मम्मा से मैगी मांग लेते हो, आपको डोसा खाना है तो आप मम्मा से डोसा मांग लेते हो, आपको जो भी खाना है आप मम्मा से मांग लेते हो ना। हाँ। आप क्या इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हो तब? नहीं। तो सांप ऊपर आता है या नहीं आता? आता है। टंग का सांप आएगा, कभी आंखों का सांप आएगा, आपको कुछ देखना है, गाने देखने हैं, वीडियो देखने, आप देख ही लेते हो ना। अब वो सांप आपको रहने देता है, चुप रहने देता है? दैट इज कॉल्ड एज इंद्रियानी प्रमाथिनी। कभी कभी तो इंद्रिय फेवरेट चैप्टर चल रहा हो, फेवरेट सब्जेक्ट हो, तो इंद्रिय बड़े कंट्रोल में रहते हैं, वो नहीं मांगेंगे पिज्जा मैगी टीवी, कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन जो चीज इंटरेस्ट वाली नहीं है तब वो सांप अपना सर ऊपर कर लेता है, सैलाब की तरह 100 की लेवल का डिजायर ऊपर आ जाता है। यस और नो? यस और नो? Yes. दिस इज कॉल्ड एज इंद्रियानी प्रमाथिनी।
ये इंद्रियानी प्रमाथिनी समझ लो, क्योंकि कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, आज तुम्हें लग रहा है कि मैं सब त्याग के चला जाऊंगा, टेक इट फॉर रिटर्न। कृष्णा बोल रहा है आज तुम्हें वैराग्य आ रहा है, जैसे ही जंगल में पहुंचोगे एक दिन मेडिटेशन करोगे, दूसरे दिन लगेगा वापस चला जाऊं, राज्य जीतू और रूल करूं। तुम्हें दूसरे दिन लगेगा कब मैं बाण पकड़ूंगा, धनुष्य बाण पकड़ूंगा और मैं युद्ध पे जाऊंगा, या फिर मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगा। तुम हिमालय में चले जाओगे, 2 दिन में तुम्हारा मन बदल जाएगा, तुम्हारे इंद्रिय प्रमाथीनी हो जाएंगे, पागलों की तरह तुम्हें बोलेंगे जा जा सिटी में वापस जा, अपना प्रैक्टिस कर ले, धनुष्य बाण ले ले, तू प्रैक्टिस कर ले, जा द्रौपदी से मिलके आ, सुभद्रा से मिलके आ, अभिमन्यु से मिलके आ, अपनी उलूपी पत्नी है, चित्रांगदा है, इन सब से मिलके आ, ऐसे करके इंद्रिय तेरे को तंग करेंगे। तो आज तुम्हें लग रहा है लड़ाई छोड़कर मैं जाता हूँ, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वापस आने का मन करेगा। इंद्रियानी प्रमाथिनी, ये खासकर बच्चों के साथ भी बहुत होता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको लगता है हम कब घर से बाहर निकलेंगे, हम कब हॉस्टल जाएंगे, कब दोस्त बनाएंगे, लेकिन जैसे ही घर के बाहर रहकर नौकरी करने लग जाते हैं उनको वापस मम्मा पापा से मिलना होता है, बार बार वापस आना होता है। लड़कियां बड़ी खुश होती है शादी के वक्त कि अरे अभी जाएंगे, पति के घर जाएंगे, खुश रहती है वो तो। वहां जाने के बाद माँ बाप की याद आती है, पीछे आ जाती है कि अरे माँ बाप चाहिए, माँ बाप चाहिए, माँ बाप चाहिए। इसको कहते हैं इंद्रियानी प्रमाथिनी। डिटैचमेंट तो आ जाती है, लेकिन टेम्पररी डिटैचमेंट आती है, वापस अटैचमेंट ऐसे पता नहीं कहाँ से पॉपअप होके आ जाती है और फोर्स करती है आपको पेरेंट्स के घर जाने के लिए। जॉब करते वक्त आप यूएस से वापस इंडिया आ जाओगे सिर्फ पेरेंट्स से मिलने के लिए, इतना ज्यादा अटैचमेंट आपको वो ये खींच लेता है। इसको कहते हैं इंद्रियानी प्रमाथिनी। सबको समझ में आ रहा है क्या? ये लाइन क्लियर है? अब ये बताओ, विपश्चिता तो सबके पास है, सबके पास डिस्क्रिमिनेशन पावर है या नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप सबको पता है Yes, आपको Mataji. मिसयूज नहीं करना चाहिए, आप सबको पता है कानों को मिसयूज नहीं करना चाहिए, टंग को मिसयूज नहीं करना चाहिए, फिर भी बताओ मुंह से कभी कभी गलत चीज निकल जाती है नहीं निकल जाती, रॉन्ग वर्ड्स निकलते या नहीं निकलते टंग से? कौन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे? कभी कभी टंग से गलत वर्ड्स निकल जाते हैं। हाँ Mataji. दैट इज कॉल्ड एज विपश्चिता। आपको रियलाइजेशन तो है कि मेरे टंग से गलत वर्ड निकल गया, रियलाइजेशन तो है, इसका मतलब विपश्चिता है, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आपके इंद्रियों ने आपको कंट्रोल करने नहीं दिया वो रॉन्ग वर्ड मुंह से निकलते वक्त। आपके इंद्रियों ने प्रमाथिनी की तरह इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर आया कि गलत बोल ही दिया। आप सोचते हो कि नहीं बोलना नहीं बोलना, आज से ये नहीं बोलना, आज से वो नहीं बोलना, लेकिन जो भी डिसीजन लेते हो वो फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियानी प्रमाथिनी। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कृष्णा ऑलरेडी नोज आर मिजरेबल कंडीशन। ये सबसे गुड न्यूज तो यही है कि कृष्णा अगर अर्जुन को बता रहे हैं, इसका मतलब कृष्णा को पता है कि हम भौतिक जगत की जीवात्माएं कितना स्ट्रगल करती है। कृष्णा जितना जानते हैं ना, शायद उतना हम भी अपने आप को नहीं जानते। तो कृष्णा ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम्हारे पास पूरा इंटेलिजेंस है समझने का क्या सही है क्या गलत है, लेकिन तुम्हारे इंद्रिय जो है ना वो बहुत ज्यादा तुम्हें एजिटेट कर रहे हैं। अभी बोल रहे शांति चाहिए, शांति मिल जाएगी तो बोलेंगे सुख चाहिए, फैमिली लाइफ चाहिए, फिर फैमिली लाइफ मिलेगी तो लगेगा अरे फैमिली लाइफ मेंटेन नहीं कर सकता जब तक मैं क्षत्रिय बन के राज्य की रक्षण नहीं करता, फिर राज्य की रक्षण करने लगेगा तो वापस लड़ाई करने लगेगा, इससे अच्छा तू अभी लड़ाई कर ले। तो इंद्रियानी प्रमाथिनी हो रहा है तेरे साथ, ऐसे कह रहे हैं। और कृष्णा सिर्फ अर्जुन को नहीं बता रहे, हमें भी बता रहे कि हमें भी एग्जाम से पहले पढ़ने का ज्यादा मन करता है। 2 महीने 3 महीने पहले तो कोई पढ़ाई करता ही नहीं है, सबको लगता है एग्जाम अभी आने में टाइम है, रहने तो पढ़ाई, इतना सीरियसली क्यों करना है, लेकिन एग्जाम आती ज्यादा कर लेते हैं। तो पहले प्रमाथिनी नहीं होता था, अभी बाद में एग्जाम वापस आती है तो कंट्रोल हो जाते हैं सेंसेस, जब एग्जाम पास में नहीं होती तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होते सेंसेस। तो इसको कहते हैं इंद्रियानी प्रमाथिनी। है या नहीं आपको एक्सपीरियंस, इतना बता दो मुझे, एक्सपीरियंस है? Yes Mataji. राइट।
सो हरंती प्रसभम मनहा, हरंती मतलब क्या है, थ्रो बाय फोर्स द माइंड, तो माइंड क्या कर देता है, फोर्सिबली, अपने फोर्सिबली इट विल कैरी द डिजायर ऑफ योर माइंड, माइंड में जो डिजायर आ जाता है, प्रसभम, प्रसभम मतलब इतना ज्यादा फोर्स आ जाता है उस डिजायर का कि वो डिजायर ऐसे थ्रो हो जाता है, मतलब यू नेचुरली आप उसको कैरी आउट करते हो, आपको नहीं करना होता तो भी आप कर लेते हो, आपको सब पता होता है कि अभी पढ़ाई का टाइम है, खेलना नहीं चाहिए, डिजायर कंट्रोल नहीं कर पाते, प्रसभम, बाय फोर्स से इच्छा आती है खेलने की और आप दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाते हो, आपको पता होता है टाइम खाना खाने का है, लेकिन प्रसभम, जोर से स्ट्रॉन्ग इच्छा आएगी कि मैं टीवी देख लेता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो गेम्स खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बाद में खाना खा लेंगे, प्रसभम, बाय फोर्स, आपका माइंड जो है बाय फोर्स आपको वो काम कराता है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेशियस, इम्पेटियस का मतलब क्या है बताओ मुझे, इम्पेटियस का मतलब क्या है, पता नहीं, बिना सोचे समझे जो बात की जाती है, सोचते ही नहीं, इम्पल्सिव, इम्पेटियस का मतलब क्या, इम्पल्सिवली, इम्पल्सिव, कुछ लोग होता है ना, पानी पूरी खाने का मन कर गया, चलो पानी पूरी खाने चलते, सोचते ही नहीं, 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे जाना है तो जाना है, कुछ लोग कहते हैं मूवी देखनी है, मूवी देखनी है, देखेंगे नहीं कि रात के 10:30 का शो नहीं जाना चाहिए, लेट हो जाएगा, 1 बज जाएगा, लेकिन इम्पेटियस, इम्पल्सिव है, जाना है तो जाना है, कंट्रोल ही नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आता कि उनकी बुद्धि ब्लॉक कैसे हो जाती है, उनको कभी कभी जो चीज जब चाहिए, सेंसेस आर, उनके सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसका मतलब क्या, दे आर सो स्ट्रांग एंड इम्पेटियस, इम्पेटियस मतलब इम्पल्सिवली, ऐसे मतलब जैसे स्विच ऑन बटन होता है ना हमारे स्विच बोर्ड का, ऑन ऑफ बटन होता है, वैसे ऑन करते ही उनको वो चीज चाहिए होती है, नहीं मिलती तो बड़ा गुस्सा करने लग जाते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, इतना लेट क्यों हुआ, सो इम्पेटियस, ऐसे लोगों के सेंसेस बहुत इम्पेटियस होते हैं, ओ अर्जुना, दे फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ऐसे कुछ कुछ फैमिली में ऐसे लोग देखे हैं क्या, जो गुस्सा करते हैं, टाइम पे उनको चाय कॉफी ना मिले तो गुस्सा कर देते हैं, टाइम पे पानी नहीं मिला तो गुस्सा करते हैं, टाइम पे उनको चाहिए होता है कि जैसे ही बोला वैसे हाथ में आना चाहिए, डू यू नो एनी सच पीपल इन लाइफ, पानी, डू यू नो एनी सच पीपल, आपको है कोई देखे ऐसे लोग, मांगते ही उनको चाहिए होता है इमिजिएटली, माता जी छोटे बच्चे। छोटे बच्चे, नहीं अच्छा माता बड़े, देखा है क्या विघ्नेश, किसी को नहीं देखा लाइफ में आपने ऐसा, नहीं माता जी। कोई नहीं देखा ऐसे लाइफ में, जिसको कुछ चाहिए होता है तो उसी वक्त चाहिए होता है, नहीं मिला तो गुस्सा कर लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है माइंड में, ऐसे कोई बच्चे देखे हैं क्या, नहीं माता कम मार्क्स आते ही बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको अच्छे माता मार्क्स जी। उसी वक्त चाहिए होते हैं, नहीं माता जी, जो भी बच्चे जो है उनको कम मार्क्स आते हैं, वो मोटिवेट होते हैं और बाद में अच्छे मार्क्स आते हैं। कोई ऐसा नहीं देखा आपने लाइफ में जिसको इम्पेटियस है, इम्पल्सिव डिसीजन आपने देखा ही नहीं है, इसका मतलब है ना, नहीं माता जी। तो थोड़ा सा देख लेना आप, आपके महाभारत में भी बहुत सारे किस्से हैं, अपना दुर्योधन है, दुर्योधन को राजकुमार बनना था तो बनना था, इम्पल्सिव था वो कि मैं अभी चाहता हूँ सर काट लेता हूँ अपना, पिताजी ने अगर मुझे राजकुमार घोषित नहीं किया तो मैं सर काट लेता हूँ, वो क्या है, इम्पेटियस है या नहीं है, है माता जी। है ना, सो वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन शास्त्रास जहाँ पे हमें देखा है कि लोगों के जो इंद्रिय है बहुत स्ट्रांगली उनको फोर्स करते हैं। अब क्या दुर्योधन को पता नहीं था सही क्या है गलत क्या है, दुर्योधन को पता नहीं युधिष्ठिर उससे एज में बड़ा है, पता डिस्क्रिमिनेशन था। तो है ना, दुर्योधन के पास भी विपश्चिता है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज है कि युधिष्ठिर उम्र में बड़ा है और ज्यादा बेटर राजा युधिष्ठिर ही बन सकता है, सब पता है दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन ने क्या करना है, इम्पेटियस, उसके सेंसेस उसके हाथ में नहीं है,
सेंसेस हाथ में नहीं है तो इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है वो कि मैं अपना सर काट डालने की धमकी दूंगा अपने पिताजी को अगर मेरे पिताजी मुझे राज्य का राजकुमार घोषित नहीं करते। सबको एग्जाम्पल मिल गया क्या इम्पल्सिव का, इम्पेट्यूअस का? आपण जास्त झाली आता मी म्हणलं 10 येणार आहे किसी को डाउट है इसमें? तर मग ती 9:30 So ला much. की तुझी आहे आप लोगों ने नहीं देखे होंगे कोई लोग तो दुर्योधन को समझ लेना, ठीक है? ओ अर्जुना, they forcibly carry away the mind even if man of discrimination who is endeavoring to control them। कितना भी महान इंसान होगा वो कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अपने इंद्रियों को, उसका भी मन उसकी बात नहीं सुनेगा। उसका मन प्रसभम बाय फोर्स उससे गलत काम करवाएगा जब उसका डिजायर बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, उसके सेंसेस बहुत स्ट्रांग है ना, इम्पेट्यूअस हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने पर्पट में यहाँ पे बताया है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे सेजेस थे, फिलोसोफर्स थे, ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे। सेजेस मतलब ऐसे ऋषि मुनि जो शास्त्र पढ़ते हैं, फिलोसोफर्स मतलब जो सारे ही वेद शास्त्र पढ़ते हैं। सेजेस तो चलो अपने अष्टांग योग रिलेटेड पढ़ेंगे, फिलोसोफर्स तो ऐसे होते हैं कि नास्तिकवाद भी पढ़ेंगे, आस्तिकवाद भी पढ़ेंगे, सारे उपनिषद, सारे वेद शास्त्र, भक्ति योग भी पढ़ेंगे, कर सब कुछ ही पढ़ेंगे। ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं जो सिर्फ भक्ति योग पढ़ते हैं, जो सत्वगुण के परे कैसे जाना है वो सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये तीनों सेक्शन के जो आध्यात्मिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, फिलोसोफर है, भक्ति योगी है, सारी है जो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत सालों से कंट्रोल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ देयर एंडिवर्स। मेहनत तो बड़ी चल रही है सेंस कंट्रोल करने की, लेकिन बड़े से बड़े लोग, ग्रेटेस्ट ऑफ देम समटाइम्स फॉल विक्टिम टू सेंस एंजॉयमेंट। इतने बड़े बड़े प्रख्यात बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, भक्ति में आगे जाते हैं, ज्ञान योग में, अष्टांग योग में, ऐसे बहुत आगे जाते हैं, लेकिन सेंस एंजॉयमेंट की विक्टिम हो जाते हैं। मतलब उनका जो इंद्रिय है वो इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है। इम्पल्सिव मतलब उस वक्त के लिए कुछ भी नहीं सोचना, बिना सोचे समझे, ऐसे जैसे कि बुद्धि ब्लॉक हो गई हो, सडनली आइसक्रीम खाना है खा लो, ये भी नहीं सोचेंगे कि विंटर्स चल रहे हैं, अच्छा नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा सैलाब आता है डिजायर का, ड्रिंक करना है, गैम्बलिंग करना है, इंटॉक्सिकेशन करना है, मीट ईटिंग करना है, क्रॉस फ्रेंडशिप करनी है, ये ऐसे डिजायर्स के सैलाब आते हैं और उनको ऐसे लगता है जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन पावर ही चली गई हो, वो अभी कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड देन वो सेंस एंजॉयमेंट के ये हो जाते हैं, शिकार बन जाते हैं, बड़े से बड़े। इंडिया में तो ऐसे इतने, भोंदू बाबा का एग्जाम्पल है, ये जो भोंदू बाबा बना है वो डे वन से भोंदू नहीं था, फंसाने वाला नहीं था। वो शुरुआत में आया तो आध्यात्मिकता को लेकर वो बहुत सीरियस था, जैसे जैसे वो पॉपुलर होता गया, उसको फेम मिलती गई, फेम मिलती गई, तो उसने अपनी फेम का, पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों की प्रताड़ना करना शुरू किया, लोगों को फंसाना शुरू किया। तब जाके इंडिया में ऐसे बाबा लोग आए जो क्रॉस फ्रेंडशिप करके चले गए, इंटॉक्सिकेशन करके चले गए, फिर उनको जेल भी हुई, जेल में काफी इनको बहुत ज्यादा पनिश भी किया गया। तो ये लोग जो होते हैं ना, जो दुनिया को फंसाने वाले आध्यात्मिकतावादी, शुरुआत में तो वो सीरियस थे आध्यात्मिकता में, लेकिन आगे जाकर उनका ग्रेटेस्ट ऑफ देम फॉल विक्टिम टू सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति के, इंद्रिय एंजॉयमेंट की शिकार बन जाते हैं। शिकार बनना चाहिए क्या इंद्रियों की तृप्ति का? अपना अपना ढूंढ लो कौन सी इंद्रिय तृप्ति के आप शिकार हो, डायरी में लिख लो, सब अपने अपने माइंड में आंखें बंद करके अपने आप को ही बताओ कि मैं किस इंद्रिय तृप्ति का शिकार हूँ, कौन से सेंस एंजॉयमेंट क्या मैं शिकार बन गया हूँ। सब आंखें बंद करो, अपने आप को ही बताओ, किसी और को बताने की जरूरत नहीं, आपने अपना सुधार करना है। अपने आप को बताओ आप किस इंद्रिय के शिकार बन गए हो, अपनी बॉडी के किस इंद्रिय के शिकार हो आप। क्वेश्चन समझ में आ गया? Everybody understood the question? Yes, sir. Now go ahead and think of पोरांना तुझ्या काढली which sense enjoyment you have fallen victim to. Victim मतलब क्या? शिकार बन जाना, है ना? सबको पता चल गया अपना अपना? Yes, Mataji.
एवरीबडी, आपको खुद पता है कि आप किस चीज के विक्टिम हो, है ना? तो ऐसे आप भक्ति में बहुत बड़े हो जाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे ना भक्ति में, तो भी आप किसी ना किसी के विक्टिम रहोगे। आपको बस ऑब्जर्व करना है। आज आपने अभी 1 मिनट में ऑब्जर्वेशन स्किल सीख लिया या नहीं सीखा आपने? ऑब्जर्व कैसे करना है सीख लिया। सीख लिया। सीख लिया। अभी ये आपने जब भी भक्ति भक्ति कर रहे हो, बड़े होते वक्त आपने हर साल बर्थडे पे अपने आप को पूछना है, अपने बर्थडे पे अपने आप को आंखें बंद करके ये एक्सरसाइज करनी है हर बर्थडे पे कि मैं किस मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट का विक्टिम हूँ, मैं किस चीज का शिकार हूँ, मैं किस चीज का शिकार हूँ, मैं किस चीज का शिकार हूँ, कौन से इंद्रियों का शिकार बन गया हूँ, क्या मैं चाय का शिकार हूँ, क्या मैं कॉफी का शिकार बन गया हूँ, क्या मैं इंटॉक्सिकेशन का शिकार हूँ, क्या मैं क्रॉस फ्रेंडशिप का शिकार हूँ, मैं किस चीज का शिकार हूँ, मैं वीडियो का शिकार बन गया हूँ, मैं गानों का शिकार बन गया हूँ, बहुत ज्यादा गाने सुनने का मन करता है, बहुत ज्यादा वीडियोस देखने का मन करता है, मैं शिकार किस चीज का हूँ। ये अपने आप को क्वेश्चन पूछना है। कभी कभी कुछ लोगों को बाइक्स और कार्स के मैगजीन्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या मुझे बाइक्स और कार्स के मैगजीन्स का शिकार बन गया हूं, मैं किस चीज का मैं शिकार बन गया हूं। अपने आप को ये क्वेश्चन हर बर्थडे पे पूछना और 1 साल उस पे काम कर लेना। दैट्स ऑल। आपको पास बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज है जो आपको शिकार आपको बना रही है। ओके, आपको पता होगा तो आपको पता चलेगा कि ओ ये इंद्रियानी प्रमाथिनी है, कृष्णा इसकी बात कर रहे हैं, तो आपको कृष्णा याद आ जाएंगे। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओ कृष्णा कहते हैं कि इसको एजिटेटेड माइंड कहते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने विश्वामित्र का एग्जाम्पल दिया। विश्वामित्र को मेनका अच्छी लग गई थी, तो विश्वामित्र ने अपनी तपस्या करना बंद कर दिया था। उनको मेनका सुंदर लग गई थी, तो उनको शादी करनी थी मेनका से, तो उन्होंने बच्चे भी पैदा किए मेनका के साथ और वापस योग करने के लिए चले गए। तो विश्वामित्र को मेनका की सुंदरता भा गई थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे कई सारे हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स है कि जहाँ पे बड़े बड़े योगी जो है वो फिसल गए हैं। बड़े बड़े योगी क्या हो गए, बड़े बड़े योगियों के साथ वो अपने फिसल गए, वो लोग अपने योग से नीचे गिर के शिकार बन गए, किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति के शिकार बन गए। विश्वामित्र आंखों के शिकार बने, हाँ या ना? कानों के शिकार बने, कान से छम 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 सुना था, मेनका की छम छम आवाज सुनी थी, तो कानों के शिकार बने। जैसी आंखें खोली मेनका बड़ी सुंदर लगी, आंखों के शिकार बने। यस और नो? ऐसे करके कान और आंख, ये 2 सांप ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करके विश्वामित्र का बुरा कर दिया। नहीं तो विश्वामित्र ने कब का जाना था भगवान के पास, लेकिन वो नहीं पाया। मेनका आई और विश्वामित्र की खुद के ही कान और आंखें कच्ची थी, तो वो विक्टिम हो गई, शिकार बन गए, आंखें और कान शिकार बन गए। सो विदाउट एंगेजिंग माइंड इन कृष्णा वन कैन नॉट सी सच मटीरियल एंगेजमेंट। कृष्ण में जब तक मन नहीं लगाते तब तक एंजॉयमेंट बंद नहीं होती। बोलो, द एंजॉयमेंट डजंट स्टॉप until you think of Krishna. The enjoyment doesn't stop until you think of Krishna. The enjoyment doesn't stop the enjoyment doesn't stop until you think of Krishna. until you think of Krishna. The enjoyment doesn't stop The enjoyment doesn't stop until you think of Krishna. until you think of Krishna. The enjoyment doesn't stop The enjoyment doesn't stop until you think of Krishna. until you think of Krishna. शाबाश। अभी आचार्य कहते हैं कि मैं तो अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाता हूँ ताकि मेरा कभी भी मैं किसी भी इंद्रियों के प्रति अट्रैक्ट होता हूँ तो मैं उस पर थूकता हूँ। जैसे ही वो अपना मन लगा के रखते हैं कृष्ण के चरण कमलों में, इससे होता क्या है कि अगर सामने कोई इंद्रिय तृप्ति वाला ऑब्जेक्ट आ भी जाता है तो उससे वो हेट कर पाते हैं।
राइट। अगर यमुनाचार्य जी के सामने कोई स्त्री आ गई तो ही विल लुक एट दैट वुमन जैसे वो प्रोटीन की बॉडी बनी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो, उसके अंदर प्रोटीन्स है, उसके अंदर फैट है, उसके अंदर बड़े सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, स्टूल है, यूरिन है, ऐसे करके देखेंगे उसको, ऐसे नहीं देखेंगे जैसे इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि मेरे सामने ऐसी कोई भी इंद्रिय तृप्ति वाला ऑब्जेक्ट आता है तो मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों में इतने अच्छे से लगा हुआ है कि मुझे अट्रैक्शन ही नहीं होता, तो मैं विक्टिम नहीं होता, मैं शिकार नहीं बनता किसी चीज का। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इंद्रिय तृप्ति की चीजों में आपकी टेस्ट चली जाती है ऑटोमेटिकली। ये भी कारण है कई सारे भौतिकवादी इस्कॉन में या कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से मना करते हैं। उनको पता होता है कि एक बार कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए तो इच्छा चली जाती है कुछ भी करने की, मतलब आपको एंजॉय करने की इच्छा चली जाती है। सो ऐसा है कि हंग्री मैन जो डिससेटिस्फाइड है, सफिशिएंट क्वांटिटी का अगर खाना मिल गया तो उसको बहुत ज्यादा वो बार बार खाना 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 ऐसे नहीं सोचेगा। तो ऐसी वाली हालत हो जाती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके। आते तो सब भूखे ही है, सबके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन जैसे ही जाप करने लगते हैं, हरि कथा सुनने लग जाते हैं और रीडिंग करने लग जाते हैं, प्रसादम खाने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी इच्छाएं खत्म हो जाती है बाहर के एंजॉयमेंट की। सो महाराज अम्बरीश ने भी ऐसे ही किया था। दुर्वासा मुनि सिंपली बिकॉज ऑफ हिज माइंड ही वाज एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया, लेकिन महाराज अम्बरीश को गुस्सा नहीं आ गया था, क्योंकि वो अपना मन हमेशा कृष्ण भक्ति में लगा के रखते हैं। नेक्स्ट श्लोक हम बाद में करेंगे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री श्री